ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ موسم گرما کی آمد کے پیش نظر پانی بچانے کے لیے ہم سب کو کرنی ہوگی کوششیں۔ من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے کی لوگوں سے اپیل۔ تنگ نظری سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بقا کے لیے اتحاد کو فروغ دینے کی لوگوں سے لیفٹیننٹ گورنر کی اپیل۔ نوراترا کے نوروزہ تہوار کے سلسلے میں ملک کے ساتھ ساتھ یو ٹی میں بھی آج سے ماں درگا کی پوجا شروع۔ شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن پر آج بڑی یاتریوں کی بھیڑ، اور عید الفطر کے سلسلے میں وادی کے مختلف بازاروں میں آج دن بھر رہی گہما گہمی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نوجوانوں سے کہا کہ وہ نئی ہابیز اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہنر کو تراشنے اور رضاکارانہ سرگرمیوں میں پیش رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ادارہ، کوئی اسکول، سائنس سینٹر یا کوئی سماجی تنظیم سمر ایکٹیویٹیز انجام دے رہے ہیں تو وہ انہیں #MyHolidays کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ موسم گرما شروع ہونے کے ساتھ ہی ملک میں پانی کی کمی محسوس کی جاتی ہے، اس لیے ہمیں پانی بچانے کے لیے آج سے ہی تیاریاں شروع کرنی چاہیے اور واٹر ہارویسٹنگ کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حال ہی میں کھیلی گئی کھیلو انڈیا پیرا گیمز میں ملک کے کھلاڑیوں نے اپنی لگن اور جذبے کو نمایاں کر کے سب کو حیراں کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مشکلات ہونے کے باوجود ہم ان کھیلوں میں اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں اور پیرا سپورٹس کو مشہور کریں۔ وزیر اعظم نے کھیلو انڈیا پیرا گیمز میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کو ان کی شاندار کارکردگی دکھانے پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پہلی بار منعقدہ فٹ انڈیا کارنیوال نے لوگوں کے دلوں کو جوش سے بھر دیا ہے۔ اس کارنیوال کا مقصد لوگوں میں صحت کے تئیں بیداری پیدا کرنا میں ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 25,000 لوگوں نے حصہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوراتری، اگادی اور گڑی پاڑوا کے موقع پر ملک کے عوام کے تئیں اپنی نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ واضح ہے کہ من کی بات پروگرام کا یہ 120واں شمارہ تھا۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ کشمیر کی سخت سردیوں کا اصلی امتحان صرف ایکوا ٹیک کے PPR پائپس اور فٹنگز کے لیے۔ جرمن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ہر امتحان کو کرتے ہیں پار۔ سردیوں کا جو بھی رخ ہو، ایکوا ٹیک کا فلو کبھی نہ رکتا۔ جرمن ٹیکنالوجی کا کمال، بہترین پانی کا نظام، سب کی پہلی پسند ایکوا ٹیک۔ ایکوا ٹیک، پانی کے سلیوشنز میں لیڈر۔ آج ہی اپنائیے اور پائیے پرفارمنس اور بھروسے کا وعدہ۔ گوسوامی شری گرو نباداس جی مہاراج کی 453ویں پرکاش اتسو کے موقع پر آج ابھینو تھیٹر جموں میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا۔ اس تقریب میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا موجود رہے۔ گرو نباداس جی مہاراج کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے منوج سنہا نے ان کی روحانی تعلیمات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ گرو جی نے انسانیت، ایمانداری اور سچائی کا درس دیا ہے۔ منوج سنہا نے لوگوں سے تلقین کی کہ وہ تنگ نظری سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بقا کے لیے اتحاد کو فروغ دیں۔ انہوں نے کہا کہ گرو جی نے بھی یہی درس دیا ہے کہ سماج کو بانٹنے کے بغیر سب کو ایک ہو کر انسان کی بقا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تقریب پر پارلیمنٹ ممبر جگول کشور شرما، اسمبلی ممبران ڈاکٹر دیویندر کمار منیال اور ڈاکٹر بھارت بھوشن کے علاوہ گرو نباداس سماج کلیان پریشد کے صدر سنسار چند بھی موجود رہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال جموں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے کٹھوا جھڑپ میں زخمی ہوئے جموں کشمیر پولیس کے اہلکاروں کی عیادت کی۔ سینئر ڈاکٹروں کی ٹیم نے لیفٹیننٹ گورنر کو زخمی SDPO بارڈر کٹھوا دھیرج کٹوچ اور زخمی SPO بھارت جلہوترا کے حالات کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ زخمی پولیس اہلکاروں کو ہر ممکن طبی علاج و معالجے کی سہولت میسر کی جا رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے زخمی پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ زخمیوں کے لیے علاج میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی آج سے نوراترا کے 9 دنوں کا تہوار شروع ہوا۔ شمالی بھارت کی مختلف ریاستوں میں آج مندروں کو سجایا گیا تھا اور لوگوں نے آج سے منعقد ہو رہی نو درگا پوجا میں شرکت کی۔
जम्मू कश्मीर में भी आज नवरात्रा शुरू होने के सिलसिले में नवदुर्गा पूजा का आगाज हुआ। इस सिलसिले में यूटी के मुख्तलिफ मंदिरों में आज खुसूसी पूजा का एहतमाम हुआ। जम्मू कश्मीर में मुकीम कश्मीरी पंडित आज नवरे मना रहे हैं और माता के मुख्तलिफ मंदिरों में नवदुर्गा की पूजा पाठ में शरीक हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही माता वैष्णो देवी के मंदिर में अकीदतमंदों का रश बढ़ गया है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक लगभग 48,000 यात्री पवित्र गुफा में दर्शन के लिए कटरा पहुंच गए हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गुर्ग का कहना है कि नवरात्र के दौरान यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह से ही माता वैष्णो देवी के आस्थापन पर खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम होता रहा। दुर्गानाग श्रीनगर में भी नवरात्र की शुरुआत के सिलसिले में मां दुर्गा की खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम हुआ। यहां काफी तादाद में अकीदतमंदों ने आज हाजिरी दी। इस मौके पर आलम अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। कंट्रोल लाइन पर आज टीटवाल के मकाम पर कायम शारदा माता के मंदिर में नवरे के सिलसिले में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। सेव शारदा कमेटी कश्मीर के एहतमाम से मुनाकिद इस तकरीब में मुल्क भर से आए तकरीबन 100 यात्रियों ने शिरकत की। इस मौके पर एक यज्ञ रचाया गया। बाद में श्रद्धालुओं में मिठाइयां और प्रसाद बांटा गया। आज यहां आने वाले यात्रियों में बेंगलुरु, बुलंदशहर, तमिलनाडु और दिल्ली के यात्री भी शामिल रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नवरात्र के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। काबीनी वजीर जावेद राना, आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने भी इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वादी भर के बाजारों में ईद की खरीदारी के सिलसिले में आज काफी गहमा गहमी रही। मुख्तलिफ बाजारों में लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दिए। इधर शहर श्रीनगर के बाजारों में भी खरीदारों का काफी रश रहा। लाल चौक, गोनीखंड, महाराज बाजार, अमीरा कदल, नवहट्टा, जामे मस्जिद और हजरतबल के बाजारों में लोगों का भारी रश देखने को मिला और लोग ईद की खरीदारी करते हुए देखे गए। वादी के मुख्तलिफ बाजारों में आज नौजवान लड़कियों को कतारों में मेहंदी लगाने वाली दुकानों पर देखा गया। ईद के सिलसिले में लड़कियां आज मेहंदी लगाने में मसरूफ रहीं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने ईद उल फित्र के मुकद्दस तकरीब सईद पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। डीपीएपी के सरबरा गुलाम नबी आजाद, अपनी पार्टी के सरबरा मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर, जेडीयू के यूटी सदर जीएम शाहीन, पीडीपी के सीनियर लीडर मंजूर अहमद वानी, जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने लोगों को इस मुकद्दस दिन पर मुबारकबाद पेश की है। आसार शरीफ पिंजोरा शुपैया के मुतवल्ली मीर बशीर अहमद ने भी इस मुकद्दस मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। वादी के अतराफ अकनाफ में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा मुनाकिद होंगे, जहां फर्जंदानी तौहीद नमाज ईद अदा करेंगे। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरतबल श्रीनगर में मुनाकिद होगा, जहां नमाज ईद सुबह 10:30 बजे अदा की जाएगी। जियारत हजरत ख्वाजा नक्शबंद ख्वाजा बाजार श्रीनगर और खानकाही फैज पना जियारत हजरत अलमदारी कश्मीर चरार शरीफ में भी नमाज ईद सुबह 10:30 बजे अदा की जाएगी। आसार शरीफ जनाब साहब सोरा, जियारत हजरत मखदूम साहिब श्रीनगर और जियारत हजरत अली आली बलखी पकरपोरा में नमाज ईद सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। खानकाही मोहल्ला श्रीनगर में नमाज ईद सुबह 11 बजे अदा की जाएगी। जियारत हजरत पीर दस्तगीर साहिब खानियार श्रीनगर, जियारत हजरत बाबा पयामुद्दीन चकबर्ग में नमाज ईद सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। जियारत हजरत मीर सईद याकूब साहब सुनवार में नमाज ईद सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। जियारत हजरत सखी जैनुद्दीन वली अशमकाम में नमाज ईद सुबह 9 बजे अदा की जाएगी, जबकि जियारत अहमशरी बांडेपोरा और खानकाही फैज पना त्राल में नमाज ईद सुबह 8:30 बजे अदा की जाएगी। आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा श्रीनगर में नमाज ईद सुबह 9 बजे, जबकि आसार शरीफ लाल बाजार श्रीनगर में नमाज ईद सुबह 8:30 बजे अदा की जाएगी।
हमदानिया जामे मस्जिद शरीफ आरीगाम बडगाम में सुबह 9:30 बजे, जबकि इमाम आजम ईदगाह दियालगाम अनंतनाग में नमाज ईद सुबह 9 बजे कायम होगी। खानकाह मीर शमसुद्दीन इराकी जड़ीबल श्रीनगर और इमाम बारगाह आयतुल्लाह यूसुफ बेमिना में नमाज ईद सुबह 8:30 बजे अदा की जाएगी। इमाम बारगाह जड़ीबल में नमाज ईद सुबह 9:30 बजे, जबकि मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में नमाज ईद सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। इमाम बारगाह हसन आबाद में नमाज ईद सुबह 10:30 बजे अदा की जाएगी। शेर आबाद खोरपट्टन में सुबह 9 बजे और जकूरा श्रीनगर में भी सुबह 9 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने ईद के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना इख्तिताम की तरफ जा रहा है और अगर चांद की रुयत हुई तो उसके मुताबिक ऐलान होगा। मैं पेश की लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला रमज़ान की सआदतों से फिर हमें एक बार नवाजे, ईद को सादगी के साथ मनाएं और हमारे बच्चे ईद के दौरान गाड़ियों में तेज़ रफ्तारी के साथ सड़कों पे चलते हैं। लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पे नज़र रखें और उन्हें गाड़ियों में तेज़ रफ्तारी से चलने की इजाज़त ना दें। जम्मू कश्मीर केबल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सईद कमर सजाद के मुताबिक ईद उल फित्र के पेश नज़र गुलमर्ग गंडोला सर्विस के लिए 31 मार्च और 1 अप्रैल को ऑन कैबिन टिकटिंग की सहूलत मुअत्तल रहेगी, जबकि ऑनलाइन टिकट रखने वालों के लिए गंडोला सर्विस सुबह 9 बजे से हस्बे मामूल जारी रहेगी। बांडीपोरा गुरेज सड़क को एक माह तक बंद रहने के बाद आज दोबारा यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कामयाबी से इस शाहराह पर से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल करके आज गाड़ियों को बांडीपोरा से गुरेज की तरफ जाने की इजाजत दी। इस तरह आज गुरेज के लिए ताज़ा सब्जियां और फल भी रवाना किए गए। लोगों ने बीआरओ के काम की तारीफ की है। खरीब में कायम फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और गर्दो गुबार ने मकामी लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। बेतहाशा कायम की गई सीमेंट फैक्ट्रियों से निकलने वाले आलूदा मवाद से लोगों में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी खरीव के चेयरमैन का कहना है कि जहां एक तरफ इन फैक्ट्रियों की वजह से माहौलियात पर बुरा असर पड़ रहा है, वहीं ज़ाफ़रान की पैदावार भी मुतासर हो रही है। मकामी लोगों का कहना है कि सीमेंट से उठने वाले गर्दो गुबार से बीमारियां फूट पड़ने का खतरा रहता है। पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ का जो पोल्यूशन है वो क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया है जो इस वक्त। उस रिपोर्ट के हिसाब से क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया का मतलब ही यही है कि यहाँ पर अब कोई इंडस्ट्री नहीं बन सकती। इसका मतलब ये भी है कि जो कैरिंग कैपेसिटी किसी एरिया की होती है तो वो जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी तजावुज कर चुकी है। सपोज किसी इंडस्ट्री के पास सिर्फ 2 क्लिनर्स चल रहे हैं, लेकिन इन एडिशन टू दोज 2 क्लिनर्स एक इंडस्ट्री ने उसके अलावा 3 और क्लिनर्स खड़े किए हैं जिसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कुछ भी नहीं पता। इससे बहुत सारी यहाँ पर जो बीमारियां हैं लोगों में नमूदार हो गई है, जिसमें पल्मोनरी डिजीज है, कार्डियक डिजीज, कार्डियक अरेस्ट। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।